Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching Few More EV News number 42. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव enthusiast हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one-stop shop for all things EV. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 7% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. आई मीन वाई यू डू दिस. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द EV इंडस्ट्री, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा. आज का न्यूज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ मेंशन करना चाहता हूँ. आई मीन अगर आप में से किसी ने अब तक नोटिस नहीं किया हो तो आई वांट टू टेल यू ऑल दैट वी हैव कंप्लीटेड 1000 सब्सक्राइबर्स मार्क ऑन दिस चैनल एंड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ. मुझे ये चैनल शुरू करके अब 1 साल से ऊपर हो चुका है एंड द रिस्पॉन्स फॉर माई वीडियोज़ हैज़ बीन एवरेज बट नॉनदलेस. मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ and I hope you'll keep supporting my content because we still have a long way to go और हमें ये जर्नी एक साथ करनी है और आप लोगों की सपोर्ट और प्यार के बिना ये पॉसिबल नहीं है. और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के बिना ये पॉसिबल नहीं है. और इसके बाद मेरा नया एम अब 10,000 सब्सक्राइबर्स का है. तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड नाउ वी आर डन विद दैट. लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है हैदराबाद बेस्ड EV स्टार्टअप रिवॉस से. रिवॉस, विच वॉज फाउंडेड इन 2017 बाय ज्योति रंजन हरिचंदन एंड मोहित यादव, actually stands for Revolutionary EV Operating Stack, which is an AI integrated IoT platform to make EVs smart, safe and connected. Since its launch in 2019, the company said it has deployed in 10,000 devices, जिसमें EVs और चार्जर्स दोनों इंक्लूडेड है, for more than 30 OEMs across India, China, Vietnam, नेपाल एंड इजिप्ट. और रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप ने $4 मिलियन का फंडिंग पा लिया है फ्रॉम वेंचर कैपिटल फर्म्स US बेस्ड यूनियन स्क्वायर वेंचर्स और USV and Bengaluru headquartered Prime Venture Partners or PVP as part of its Series A round. The company will now use this capital to deploy EV chargers across India और अगले 3 सालों में वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन चार्जर्स का नेटवर्क एस्टेब्लिश करने का प्लान कर रहे. अगर उनके प्रीवियस पोर्टफोलियो की बात करें तो since its launch in 2019, Revos has been deployed in 10,000 devices, especially 2-wheeler and 3-wheeler EV chargers by 30 original equipment manufacturers across India, China, Vietnam, Nepal and Egypt. So what they seem to promise is backed by a lot of experience and research and development at hand. So Revos now gets added to the list of companies that are setting up chargers across India. और अगर इस स्पीड से EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होता रहा तो शायद 2030 तक EV अडॉप्शन का टारगेट पूरा भी हो सकता है. बट लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे एंड लेट्स जस्ट सी व्हाट दे डू इन कमिंग ईयर्स. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है एक दिल्ली बेस्ड EV स्टार्टअप EV Plugs India से. Delhi based EV startup EV Plugs was co-founded in 2021 by Manish Narang, Kapil Narang and Ashwani Arora. उन्होंने EV Plugs के नाम से एक ऐप को इंट्रोड्यूस किया to locate EV charging stations across the country with more than 1,000 verified listings alongside tips for EV owners on making the most of it while being there. The app is free to download on both iOS and Android
and has a web-based software as well. Manish Narang, co-founder of EV Plugs, ने बताया, quote, EV Plugs addresses the issue of EV owners effectively, and we will keep updating the listings in real time. In the future, we also plan to introduce the facility of EV owners being able to book slots at these stations through our platform and other related value-added services. Our aim is to emerge as the one-stop platform for multiple needs related to EVs for the millions of owners who will own one sooner or later. End quote. इंडिया में EV इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में, एंड बाय दैट आई मीन इन कमिंग ईयर्स और सो, बहुत ज़्यादा ग्रो और एक्सपांड होने वाला है और हमारे आसपास वक्त के साथ ज़्यादा EVs आने वाली है और उसके साथ हमें EV चार्जिंग स्टेशंस और शॉपिंग स्टेशंस को ढूंढने की भी ज़रूरत पड़ने वाली है और EV प्लग्स उसी प्रॉब्लम को टैकल करने में हमारी हेल्प करने वाले हैं. सो EV प्लग्स इज़ नाउ मेकिंग EV चार्जर्स मोर एक्सेसिबल एंड ईजी टू फाइंड और हमें देखना होगा कि ये किस तरह अपने नेटवर्क को बढ़ा पाते हैं, बिकॉज आई थिंक ये एक काफ़ी पोर्टेंट आइडिया है और आने वाले वक्त में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है. और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है Hyundai मोटर्स से. Hyundai has been doing some heavy lifting when it comes to innovating and bringing new technologies for the EV market. उन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया है. Yes, I am talking about the eGMP प्लेटफॉर्म. और उन्होंने ग्लोबली EV स्पेस में अपने प्रेजेंस को शो करना शुरू कर दिया है. Right from the Kona Electric to the upcoming Ioniq 5. बाय द वे, मैंने रिसेंटली Hyundai Ioniq 5 पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस. Hyundai Motors is very dedicated and serious about EV adoption, and they are already working on making their whole fleet into electric only. जी हाँ, अब ऐसी खबर आ रही है कि Hyundai Motors पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के सेल्स को कम्प्लीटली बंद करने वाले हैं, स्टार्टिंग विथ यूरोप, जहां पर वो 2035 तक ICE व्हीकल्स को कम्प्लीटली बंद करने का प्लान कर रहे हैं. एंड बाय 2040 बाकी सारी कंट्रीज में भी शायद यही प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, इंक्लूडिंग इंडिया. Hyundai इज़ अ बिग कंपनी और उनका अपने EV पोर्टफोलियो को लेकर काफ़ी सीरियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना एक बड़ी बात है. बट 2035 इज स्टिल 14 ईयर्स अवे और ये ट्रांजिशन बहुत धीरे धीरे होने वाला है. सो इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई एम श्योर बहुत सारी दूसरी कंपनीज लाइक Audi, Porsche उससे बहुत पहले ही अपने पूरे फ्लीट को इलेक्ट्रिक ओनली बना चुकी होंगी. बट अभी उस पर बात करना काइंड ऑफ पॉइंटलेस है. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर नाउ because only time will tell. और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है Qualcomm से. आई एम प्रीटी श्योर आप में से ऑलमोस्ट 95% लोगों ने Qualcomm इस कंपनी का नाम सुना होगा. इनफैक्ट चांसेस आर दैट द फोन यू हैव इन योर हैंड राइट नाउ हैज़ a Qualcomm processor in it, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में ऑलमोस्ट 35% का मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया था इन द स्मार्टफोन चिप ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट. वो हमेशा से उनके प्रोसेसर को लेकर काफ़ी इनोवेटिव रहे हैं और हमेशा से इंडस्ट्री लीडिंग टेक्नोलॉजी को अपनाने की समझ के साथ आते रहे हैं. आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि मैं EV न्यूज़ में Qualcomm के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ. वेल, न्यूज़ ही कुछ ऐसी है. तो ऐसी न्यूज़ आ रही है कि Qualcomm ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो इस वक्त गूगल और रेनो के साथ मिलकर एक इन व्हीकल एक्सपीरियंस को डिज़ाइन कर रहे हैं, विच इज़ फॉर रेनोज नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल, द न्यू मेगन ई-टेक इलेक्ट्रिक. रेनो ग्रुप Qualcomm के थर्ड जनरेशन स्नैपड्रैगन ऑटोमोटिव कॉकपिट प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करने की सोच रहे हैं, जिससे वो इन व्हीकल्स के टेक्निकली एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम को पावर कर पाएंगे.
which is comprised of portrait-sized touchscreen infotainment displays for audio, visual and navigational functions. रेनो ग्रुप का मानना है कि जो थर्ड जनरेशन स्नैपड्रैगन ऑटोमोटिव कॉकपिट प्लेटफॉर्म्स है उसे इन व्हीकल एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, which support higher levels of compute and intelligence needed for advanced capabilities featured in the next generation vehicles. This is some next level stuff. और हम यहाँ पर 3 बड़े कॉरपोरेशंस की बात कर रहे हैं, जिनमें से 2 टेक जायंट्स है और इन फैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है, एंड दे आर नाउ कमिंग टुगेदर टू ब्रिंग सम न्यू टेक इनटू रेनोज अपकमिंग प्रोजेक्ट. तो ये अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि उस गाड़ी में आने वाले फीचर्स बहुत ज़्यादा हाईटेक होने वाले हैं, एंड आई एम ईगरली वेटिंग टू सी दैट हैपन. सो अगर आप इस स्टोरी के बारे में और भी जानना चाहते हो देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, क्योंकि मैं इस स्टोरी से रिलेटेड सारे अपडेट्स को मेरे आने वाले फ्यूचर वीकली न्यूज़ कवरेज में कवर करता रहूँगा. एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ. दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैव फॉर यू दिस वीक. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर मेरे कंटेंट या मेरे वीडियोस को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो. एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you will get notified every time I post a new video. तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड.